series method, partial fraction expansion method, and difference equation using Z transform. By using that one, we will find out the inverse Z transform. Now, we will start the actual syllabus. That is relation between Laplace transform, Fourier transform, and Z transform. What is the use of all these transformations? So all transforms we know is to convert the time domain signal or time domain sequence into frequency domain. Okay, particularly the Laplace transform, it is used to convert the continuous time signal into frequency domain. Again, I repeat, Laplace transform is used to convert the continuous time signal into frequency domain. Fourier transform, it convert or it is used to transform the discrete time signal into frequency domain. And Z transform, it is same as that of Fourier transform, but the basic difference between Fourier and Z transform is that Z transform is applicable for both stable and unstable systems, while the Fourier transform is applicable only for stable systems. Again, I repeat, Laplace transform is used for continuous time signal. Fourier transform and Z transform both are used for continuous as well as discrete time signal. But the difference between Fourier and Z transform is that Fourier transform is applicable only for stable systems, and Z transform is applicable for stable and unstable system both. That's why we can say Z transform is a very generalized transformation. Z transform is very generalized transformation. So we can say that Laplace transform and Fourier transform are subset of Z transform. Laplace transform and Z transform are subset of Z transform because Z transform is generalized transform. Z transform is generalized transform. It is applicable for continuous time signal, discrete time signal, stable system, and unstable system. For all, Z transform is used to convert into frequency domain. Limitations are associated with the Laplace transform and Fourier transform, not for the Z transform. Clear? It is clear? Yes, sir. Laplace transform is only used for continuous time signal. Fourier transform and Z transform both are used for discrete time signal, but Fourier transform is used for stable systems only, and Z transform is used for stable as well as unstable systems. Okay. Again, here very important point is that, okay, during the equation I will explain that. We know the equation of Fourier transform. Fourier transform का equation क्या है? X of omega is equal to summation n is equal to minus infinity to plus infinity x of n e raised to minus j omega n. This is the equation of Fourier transform. अब Z transform का equation क्या है? It is same as that of Fourier transform. Summation n is equal to minus infinity to plus infinity x of n z raised to minus n. What is x of n into z raised to minus n, where z is equal to r into e raised to j omega. Z का वैल्यू क्या है? Z का इक्वेशन क्या है? Z इज इक्वल टू r इंटू e रेस टू j ओमेगा. अब इसमें r और ओमेगा क्या है? r है रेडियस ऑफ सर्कल एंड ओमेगा है फेज एंगल. जैसे जैसे एंगल चेंज होता जाएगा वैसे वैसे वो सर्कल बनाता जाएगा. ठीक है. सो Z transform representation is always using a circle. Z transform representation is always using a circle because its equation contains radius and phase. Z is equal to r into e raised to j omega. R is the radius of circle and omega is the phase angle. Hence, it represents a circle. Means in Z transform, we can represent poles and zeros on circle. On circle means it is by using a circle. Whether it is inside the circle, on the circle, or outside the circle. But
the representation of Z transform is using circle only. Using circle only. Now अब यहां पे देखिए Z का वैल्यू है R e raised to j omega. अब ये जो वैल्यू है we can put that value in equation number 1. तो इक्वेशन नंबर 1 क्या होता जाएगा? अब यहाँ पे we know J transform is used for unstable system also, but not for all unstables. It converts the unstable system into frequency domain in a particular point or in a particular region. That region is called as a ROC. So in J transform, it is necessary to find the ROC. That is the region of convergence. और region of convergence का पार्ट हम बाद में देखेंगे. पहले ये देखिए, in equation of J transform, Z is replaced by R into e raised to j omega. ठीक है. अब Z transform का इक्वेशन क्या है? ये इक्वेशन है. X of Z is equal to summation n is equal to minus infinity to plus infinity x of n Z raised to minus n. यहाँ पे मैं खाली Z को रिप्लेस करूंगा R e raised to j omega से. So here x of R e raised to j omega is equal to summation, it remains as it is, n is equal to minus infinity to plus infinity x of n, instead of Z it is e raised to j omega raised to minus n into r raised to minus n. आप पहले r e raised to j omega raised to minus n भी कर सकते हैं. मैंने यहाँ पे सेपरेट लिया है r raised to minus n and e raised to j omega raised to minus n. ठीक है. So here if you see the first two components x of n e raised to minus j omega n, ये जो पार्ट है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? What it represent? Summation n is equal to minus infinity to plus infinity x of n e raised to minus j omega n. ये क्या रिप्रेजेंट करता है? Fourier transform. It represent the Fourier transform. बराबर है ना? So मुझे Z transform is equal to Fourier transform करना है, तो मैं क्या करूंगा? Only I replace r is equal to 1. So r is equal to 1 means what? Radius becomes 1, means it is a unit circle. It is a unit circle. If I put r is equal to 1 in the above equation, the above equation becomes x of e raised to j omega. यहाँ पे r था, तो r को मैंने 1 से रिप्लेस किया है, is equal to summation remains as it is x of n e raised to minus j omega n. यहाँ पे r is equal to 1 मैंने पुट कर दिया है, तो ये इक्वेशन आपका बन गया Fourier transform. So when a unit circle for the Z transform is nothing but the Fourier transform. Unit circle for the Z transform is nothing but the Fourier transform. Keep in mind, we can say that in Z transform, if radius is unity, then it convert into Fourier transform. Now my question is that when I say Z transform equation is same as Fourier transform equation, कब मैं कह सकता हूं ये? When I will say? When r is equals to 1. When in Z transform radius is equal to 1, then we can say that it is the equation of Fourier transform. अब Fourier transform का equation आया है, तो वो सिस्टम कैसे हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा? Stable. Stable. बराबर है? Why stable? Because Fourier transform is applicable only for the stable system. बराबर है? Only for the stable system. ये यहां तक ध्यान में आया? Yes, sir. समझ में आया? ठीक Yes, है. sir. हाँ, आप ठीक है, मैं ये वीडियो शेयर कर दूंगा आपको. ठीक है, यहाँ तक ठीक है. So by using that we can conclude that Z transform is the generalized transform function. Now directly we will see the problem. Find Z transform of x of n is equal to a raised to n u of n. Z transform of x of n is equal to a raised to n u of n. ठीक है. अब यहाँ पे ये जो स्टैंडर्ड सिस्टम्स है और सिग्नल्स है, we can say that the standard signals are there u of n.
So in Z transform, it is only used to change the limits. ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है ना, डेल ऑफ n, u ऑफ n, ओके, ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन, these equations are only, these sequences are only used to change the limit of summation. ठीक है. नाउ इसका हमें Z ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो पहले मैं क्या करूंगा, आई विल राइट द इक्वेशन ऑफ Z ट्रांसफॉर्म. द इक्वेशन ऑफ Z ट्रांसफॉर्म क्या है, x ऑफ Z इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी x ऑफ n z रेस टू माइनस n. ठीक है. अब x ऑफ n दिया हुआ है, क्या दिया है, a रेस टू n u ऑफ n. तो यहाँ पे मैं x ऑफ n को रिप्लेस करूंगा a रेस टू n u ऑफ n से. ओके, रिमेनिंग पार्ट एज इट इज. नाउ यहाँ पे u ऑफ n क्या है, व्हाट इज u ऑफ n, व्हाट इज u ऑफ n? Unit step function. Yes, it is unit step function. It is a unit step function and we know that u of n is equal to 1. इसका वैल्यू 1 रहेगा. कब 1 रहेगा, when n is ranging from 0 to infinity. From positive side only u of n is equal to 1. Now this is sufficient to change the limit of Z transform. अब मुझे बताओ u of n है तो Z ट्रांसफॉर्म का लिमिट क्या होगा फॉर u ऑफ n के लिए, 0 टू इंफिनिटी. बराबर है. अब यहां पे मैं u ऑफ n को रिप्लेस करूंगा 1 से, व्हेन द लिमिट ऑफ समेशन बिकम n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी. तो यहां पे लिमिट हो गया 0 टू इंफिनिटी, u ऑफ n 1 बन गया और a रेस टू n z रेस टू माइनस n एज इट इज आ गया. ठीक है. अब यहां पे एक स्टैंडर्ड इक्वेशन हम यूज करेंगे. कौन सा स्टैंडर्ड इक्वेशन, यहां पे देखो, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है जो ग्रीन कलर से लिखा है ना, वो स्टैंडर्ड इक्वेशन है. वो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या कहता है, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी अल्फा रेस टू n इज इक्वल टू, इसका इक्वेशन है 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा. समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी अल्फा रेस टू n इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा. बट यहां पे कंडीशन है मॉड ऑफ अल्फा शुड बी लेस देन 1. मॉड ऑफ अल्फा शुड बी लेस देन 1. ठीक है. ये क्यों किया है ऐसा ये कंडीशन क्यों है, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने अल्फा की वैल्यू 2 ली, मींस इट इज ग्रेटर देन 1, इट इज ग्रेटर देन 1. यहाँ पे समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी 2 रेस टू n, अल्फा का वैल्यू 2 है. बराबर है. अब बारी बारी से मैं n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2 ऐसा ऐड करता जाऊंगा अप टू इंफिनिटी. तो n इज इक्वल टू 0 है तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 0 रेस टू n, 1. सॉरी 0 रेस टू नहीं, 2 रेस टू 0, 2 रेस टू 0 इज 1, 2 रेस टू 1 2, 2 रेस टू 2 4, 2 रेस टू 3 8. ये कहां तक जाएगा, कहां तक जाएगा ये, इंफिनिटी. बराबर है ना. यहां पे क्या हो रहा है, वैल्यू इज इन इंक्रीजिंग मैनर. बराबर है. वैल्यू इज इन इंक्रीजिंग मैनर, वो जाएगा इंफिनिटी तक. तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, आउटपुट हमें इंफिनिटी ही मिलेगा. बराबर है. अपोजिट टू दैट, इफ आई पुट वैल्यू ऑफ अल्फा लेस देन 1, कौन सा भी एक वैल्यू ले लो आप, लेस देन 1, हियर आई कंसिडर अल्फा इज इक्वल टू 0.2. यहां पे मैंने 0.2 पुट किया और n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी मैं डालना शुरू कर दूंगा. अब 0.2 रेस टू 0 इज 1, 0.2 रेस टू 1 0.2, 0.2 रेस टू 2 0.04, 0.2 रेस टू 3 0.008. ठीक है. तो इसका लास्ट वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा. बराबर है. इसका लास्ट वैल्यू क्या आएगा, फाइनाइट वैल्यू आएगा. दैट्स व्हाई दैट कंडीशन इज हियर, अल्फा शुड बी लेस देन 1. समझ में आया. ए इक्वेशन क्या है, ए इक्वेशन आप ध्यान में रखो क्योंकि ए इक्वेशन का इस्तेमाल हम आगे करने वाले हैं. ठीक है. मतलब क्या है, यानी लिमिट होना चाहिए 0 टू इंफिनिटी. लिमिट होना चाहिए 0 टू इंफिनिटी अल्फा रेस टू n. ये सिचुएशन है तो इसका आंसर आपको मिलेगा 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा. बट द कंडीशन इज दैट मॉड ऑफ अल्फा शुड बी लेस देन 1. ठीक है. अब हमारा इक्वेशन वही बन रहा है, n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी ए जेड रेस टू -1 रेस टू n. तो यहां पे देखो मैंने यहां से n कॉमन ले लिया है. n कॉमन लेने के बाद बाकी क्या बचेगा, a रेस टू 1 और z रेस टू -1. बराबर है. इसका
पावर आ जाएगा आपका n। ये देखिए यहाँ पे नाउ ए इक्वेशन और ए इक्वेशन आप कंपेयर कीजिए। सो डायरेक्टली आई यूज दिस स्टैंडर्ड इक्वेशन एंड आई राइट x of z is equal to 1 upon 1 minus a z inverse, because this term inside the bracket represent the alpha, ये अल्फा की वैल्यू है। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है, अल्फा शुड बी लेस देन 1। यहाँ पे अल्फा है आपका a z इनवर्स, सो a z इनवर्स शुड बी लेस देन 1। नाउ हियर ओनली एडजस्टमेंट इज देयर, यू कैन एडजस्ट दैट टर्म, मतलब जो -1 का टर्म है आपको वो निकलना है, ओके उसको निकाल देना है। तो कैसे भी कर सकते, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैं z से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। यहाँ पे z से मल्टीप्लाई किया तो ये z बन जाएगा, यहाँ पे z से मल्टीप्लाई किया गया तो ये z माइनस z इंटू z रेस टू -1, ये 1 बन जाएगा आपका, आ गया a। तो x ऑफ z इज इक्वल टू z अपॉन z माइनस a, जिसको भी मैंने एडजस्ट कर दिया, a z रेस टू इनवर्स को a बाई z लेस देन 1, x ऑफ z इज इक्वल टू z अपॉन z माइनस a, तो z का वैल्यू बन जाएगा आपका मॉड ऑफ z इज ग्रेटर देन a। सो दैट कंडीशन रिप्रेजेंट द रीजन, ऑफ कॉन्वर्जेंस। तो यहां पे आपको z ट्रांसफॉर्म निकल सकता है, द रीजन वेयर द z ट्रांसफॉर्म कैन बी find out, that region is called as a region of convergence, ठीक है। अब यहां पे मैं खाली क्या करूंगा, इसका पोल जीरो प्लॉट निकलूंगा। पोल कहां से मिलेगा आपको, पोल कहां से मिलेगा, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 1, सॉरी डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0, और जीरोस कहां से मिलेगा आपको, न्यूमरेटर इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे न्यूमरेटर है z इज इक्वल टू 0, तो ये आ गया 0 आपका, और इसका पोल क्या मिलेगा आपको, z माइनस a इज इक्वल टू 0, तो z इज इक्वल टू a, सो z इज इक्वल टू a, सो दैट रिप्रेजेंट योर सर्कल। तो सर्कल का रेडियस बन जाएगा आपका a, बराबर है। तो a के हिसाब से आप सर्कल ड्रॉ करो। लेकिन यहां पे आपका आरओसी है z इज ग्रेटर देन a, मतलब आपका आरओसी है a का जो सर्कल है उसके बाहर, सो एक्सटीरियर पार्ट ऑफ the circle having radius a is nothing but your region of convergence, so it represent the region of convergence। तो यहां पे प्रॉब्लम मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड किया है, स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी मैं यहां पे आपको समझा दूंगा। स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी वो क्या है, फोरियर ट्रांसफॉर्म एप्लीकेबल फॉर स्टेबल सिस्टम्स, मैं ये बाद में रिपीट करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। फोरियर ट्रांसफॉर्म आपका एप्लीकेबल है ओनली फॉर द स्टेबल सिस्टम। Z ट्रांसफॉर्म इज सेम एज फोरियर ट्रांसफॉर्म व्हेन r इज इक्वल टू 1, मींस रेडियस आपका 1 है। इफ ROC ऑफ Z ट्रांसफॉर्म इंक्लूड्स यूनिट सर्कल, ध्यान दीजिए, if region of convergence of Z transform includes unit circle, then Fourier transform exists। ये सेंटेंस आपके समझ में आया है या नहीं? Only concentrate on this sentence. If ROC of Z transform includes unit circle, then Fourier transform exists, and as Fourier transform exists, system is stable, otherwise unstable। Read the sentence carefully. Read the sentence carefully। सर मगाशी म्हणलं होतं की Z ट्रान्सफॉर्म कॅन बी कन्वर्टेड टू फुरियर ट्रान्सफॉर्म व्हेन रेडियस इज 1। बरोबर आहे। सो 1 किंवा लेस दॅन 1 अशा दोन कंडिशन्स आहेत। हो बरोबर आहे ना, बरोबर आहे। ठीक आहे ठीक आहे, करतो क्लिअर मी तो पार्ट, करतो पार्ट। आता इथं कन्फ्युजन काय होतंय तुमचं, इथं रेडियस युनिटीच्या फॉर्मॅटमध्ये येत नाही। रेडियस किती येते तुमची, ए, रेडियस इज ए इन दिस एक्झाम्पल, रेडियस इज ए। Now this A having two conditions, we can say A
एक से ग्रेटर भी हो सकता है और एक से लेस भी हो सकता है, बराबर है? यस और नो? ये यस सर। हाँ, ये एक से ग्रेटर भी हो सकता है और एक से लेस भी हो सकता है। ठीक है, हम दोनों कंडीशन अभी ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पे देखो, ROC इज जेड इज ग्रेटर देन ए। दो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। पहली पॉसिबिलिटी क्या है? ए इज लेस देन वन। ए इज लेस देन वन मतलब यहाँ पे मैं पहले एक यूनिट सर्कल ड्रॉ करूंगा। ए यूनिट सर्कल है, बराबर है? ये कंडीशन क्या है? ए इज लेस देन वन। लेस देन वन है तो ए यूनिट सर्कल के अंदर ही आएगा, बराबर है? इफ ए इज लेस देन वन देन दैट सर्कल शुड बी इनसाइड द यूनिट सर्कल। ये फिक्स है ना, बराबर है ना? Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पे दो रेडियस मैंने यूज किया है। पहला रेडियस है यूनिट सर्कल का, एक रेडियस है। दूसरा रेडियस है एक से कम है, वो है ए। तो ए का एक सर्कल मैंने बना दिया है, बराबर है? अब यहाँ पे कंडीशन क्या है? आरओसी क्या है? जेड इज ग्रेटर देन ए। तो जेड इज ग्रेटर देन ए, यहाँ पे जो ब्लू कलर है, वो है उसका आरओसी। जेड इज ग्रेटर देन ए मीन्स द एक्सटीरियर पार्ट ऑफ सर्कल हैविंग रेडियस ए। तो पूरा पार्ट है, पूरा पार्ट है, बराबर है? तो पूरा पार्ट में यूनिट सर्कल आया है, नहीं आया है? आया है. आया है, बराबर है? तो यहां पे मैं ऐसा कह सकता हूं क्या? इट शोज दैट आरओसी इंक्लूड द यूनिट सर्कल। यस और नो? Yes. ये आरओसी है ना? आरओसी क्या कहता है? आरओसी इज ग्रेटर देन ए। तो ए के बाहर जितना भी एरिया है वो हो गया आपका आरओसी। वो हो गया आपका आरओसी। तो वो आरओसी में यूनिट सर्कल आया है कि नहीं? आया है, बराबर है ना? तो यहां पे इट शोज दैट आरओसी इंक्लूड द यूनिट सर्कल, हेंस फूरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट। इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकल सकता है। That's why this system is a stable system. That's why we can say that this system is a stable system. Second possibility देखो, a is greater than 1. a is greater than 1. अब यहां पे मैंने अगेन एक यूनिट सर्कल ड्रॉ किया है। a ऐसी वैल्यू है जिसका नंबर और जिसकी वैल्यू यूनिट से ज्यादा है। Here we consider a is equal to 2. a is equal to 2. वहां पे मैंने एक सर्कल बना दिया है, वहां पे मैंने एक सर्कल बना दिया है, ठीक है? अब यहां पे आरओसी क्या कहता है? जेड इज ग्रेटर देन ए। तो ए के बाहर जितना भी एरिया है वो उसका हो गया आरओसी, बाहर का एरिया हो गया आरओसी। अब मुझे यहां पे बताओ, ये जो आरओसी है ये यूनिट सर्कल इंक्लूड करता है या नहीं करता है? नहीं करता है. नहीं करता है, नहीं करेगा, क्योंकि आरओसी बाहर गया है और सर्कल अंदर रह गया है। तो ROC does not include the unit circle. That's why Fourier transform of this does not exist. That's why we can say that this system is unstable system. This system is a unstable system. अब यहां पे देखो, ये सेंटेंस पढ़ो। If ROC of Z transform includes unit circle, then Fourier transform exists, and that time we can say that the system is stable system. अदरवाइज सिस्टम इज अनस्टेबल। अब डायरेक्टली अनस्टेबल नहीं बोल सकते, उसमें भी तीन पार्ट है, आपने स्टडी किया होगा। सिस्टम इज स्टेबल, अनस्टेबल एंड मार्जिनरी स्टेबल। सिस्टम इज स्टेबल, अनस्टेबल एंड मार्जिनरी स्टेबल। इफ आरओसी इंक्लूड द यूनिट सर्कल, वी कैन से दैट इट इज स्टेबल सिस्टम। ROC does not include the unit circle, means ROC is exterior part of unit circle, then we can say that it is an unstable system. And if ROC is on the unit circle, then we can say that it is the marginally stable. It is called as a marginally stable. अब कोई कंफ्यूजन है क्या? No, sir. आया समझ में? No, sir. हाँ, आया समझ में, ठीक है। और एक एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल, वो तो क्लियर हो जाएगा आपका। फाइंड जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ
x ऑफ n इज इक्वल टू माइनस ए रेस टू n u ऑफ माइनस n माइनस वन। अब यहाँ पे ये जो सिंपल सिंपल प्रॉब्लम है बेस्ड ऑन द इक्वेशन ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पे पहली चीज हमें ये करनी है कि जो स्टैंडर्ड सीक्वेंसेस दिए हैं, जैसे यूनिट स्टेप है, डेल्टा फंक्शन है, यूनिट इम्पल्स दिया है, तो उसकी लिमिट क्या है, पहले वी हैव टू फाइंड आउट दैट लिमिट। बराबर है। अब यहाँ पे जो स्टैंडर्ड इक्वेशन दिया है उसको हम उसको इक्वेशन में और प्रॉब्लम में शिफ्ट करके दिया है। u ऑफ माइनस एन माइनस वन, पहले तो हमें u ऑफ n क्या है वो निकालना पड़ेगा। उसके बाद u ऑफ माइनस एन क्या है वो निकालना पड़ेगा। उसके बाद u ऑफ माइनस एन माइनस वन सीक्वेंस निकालना पड़ेगा, और देन वी कैन से दैट द लिमिट फॉर दिस इक्वेशन इज लाइक दिस वन। ठीक है। अब u ऑफ माइनस एन है तो u ऑफ माइनस एन कहां पे रिप्रेजेंट करेगा, u ऑफ माइनस एन कहां पे रिप्रेजेंट करेगा, पॉजिटिव साइड पे करेगा या नेगेटिव साइड पे रिप्रेजेंट करेगा, नेगेटिव साइड पे। नेगेटिव साइड पे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा। बराबर है। तो u ऑफ माइनस एन यहां तक है वो जीरो से स्टार्ट होगा। बराबर है। मतलब माइनस इंफिनिटी टू जीरो ये उसका लिमिट होगा u ऑफ माइनस एन का। तो उसमें क्या किया है, माइनस वन किया है, तो माइनस वन इज द शिफ्टेड वर्जन ऑफ u ऑफ माइनस एन। तो वो शिफ्ट कहां होगा, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा बाय वन। तो जो सीक्वेंस है u ऑफ माइनस एन माइनस वन वो स्टार्ट होगा आपका माइनस वन से और जाएगा माइनस इन्फिनिटी तक। बराबर है। तो दिस इज द सीक्वेंस फॉर u ऑफ माइनस एन माइनस वन। तो इसका इक्वेशन और इसका रेंज होगा आपका माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन तक, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन तक। सो हियर आई कैन राइट u ऑफ माइनस एन माइनस वन इज इक्वल टू वन फॉर व्हाट रेंज, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन। फॉर व्हाट रेंज, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन। तो यहाँ पे पहले मैं आपको यहाँ पे लिमिट फाइंड आउट हो गए, देन रिमेनिंग पार्ट इज वेरी वेरी सिंपल। पहले हम लिखेंगे जेड ट्रांसफॉर्म का इक्वेशन, एक्स ऑफ जेड इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन जेड रेस टू माइनस एन। ठीक है। उसके बाद एक्स ऑफ एन दिया हुआ है तो उसका वैल्यू मैं यहाँ पे लिख दूंगा, एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी माइनस ए रेस टू एन यू ऑफ माइनस एन माइनस वन जेड रेस टू माइनस एन। ठीक है। अब यहाँ पे मुझे लिमिट पता है, किसकी लिमिट, u ऑफ माइनस एन टू माइनस वन, इसका लिमिट है माइनस इंफिनिटी टू माइनस वन। तो ड्यूरिंग दिस लिमिट्स इट्स वैल्यू इज वन, इट्स एम्पलीट्यूड इज वन। सो डायरेक्टली आई रिप्लेस द लिमिट्स माइनस इंफिनिटी टू माइनस वन माइनस ए रेस टू एन, इसका वैल्यू बन गया वन जेड रेस टू माइनस एन। ठीक है। उसके बाद हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है, कौन सा स्टैंडर्ड इक्वेशन है जो हमने यूज किया है, ए इक्वेशन, जो यहाँ पे ग्रीन कलर ने लिख लिया है, एन इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी अल्फा रेस टू एन इज इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस अल्फा। तो मुझे ए लिमिट चाहिए जीरो टू इन्फिनिटी, लेकिन यहाँ पे हमारे लिमिट है माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन। तो पहले मैं क्या करूंगा, ये जो नेगेटिव लिमिट है उसको मैं पॉजिटिव कर दूंगा। ठीक है। नेगेटिव लिमिट को मैंने पॉजिटिव लिमिट में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करूंगा, कोई आइडिया दे सकता है? माइनस बाहर लेके लिमिट्स चेंज करना नहीं होना। तो माइनस, ये जो माइनस है माइनस साइन बाहर निकालेंगे तो ये माइनस साइन रिप्रेजेंट द एम्पलीट्यूड ओनली और द वैल्यू ओनली और द मैग्नीट्यूड ओनली। मुझे लिमिट चेंज करना है, तो लिमिट कैसे चेंज करूंगा मैं, यहाँ पे n इज रिप्लेस बाय माइनस n। क्या करूंगा मैं, यहाँ पे n इज रिप्लेस बाय माइनस n। बराबर है ना। तो यहाँ पे n माइनस हो गया तो लिमिट अल्टीमेटली पॉजिटिव बन जाएंगे, माइनस माइनस निकल जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, यहाँ पे देखो, n इज रिप्लेस बाय माइनस n। तो एक्स ऑफ जेड इज इक्वल टू n इज इक्वल टू इन्फिनिटी टू वन। बराबर है। खाली यहां पे चेंज नहीं होगा n, यहां पे भी चेंज होगा। तो यहां पे
देखिए n यहाँ पे है प्लस और यहाँ पे है माइनस, तो ये भी माइनस माइनस बन जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस ए रेज टू माइनस एन एंड जेड रेज टू प्लस एन, यहाँ पे भी एन रिप्लेस बाय माइनस एन। ठीक है, अब पॉजिटिव बन गया आपका लिमिट, मुझे लिमिट चाहिए 0 टू इंफिनिटी, यहाँ पे है इंफिनिटी टू 1, तो इंफिनिटी मुझे ऊपर चाहिए, तो लिमिट मैं चेंज कर दूंगा, हाँ लिमिट चेंज करूंगा, एडजस्ट करूंगा लिमिट, n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी। हियर इफ आई चेंज द लिमिट फ्रॉम इंफिनिटी टू 1 टू इंफिनिटी, कोई फर्क पड़ेगा? इज देयर एनी डिफरेंस? No. नहीं होगा, क्योंकि ये समेशन है, समेशन है, 1 से इंफिनिटी का समेशन ले लो और इंफिनिटी से 1 का समेशन ले लो, आंसर आपका एक ही आएगा ना, बराबर है, आंसर रिमेन्स सेम। दैट्स व्हाई हियर आर डायरेक्टली चेंज द लिमिट। ओके, नाउ हियर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इज देयर, मुझे चाहिए n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, 0 टू इंफिनिटी, तो मैंने एक ऐड कर दिया उसमें, मैंने क्या किया, एक ऐड कर दिया, तो आपका इक्वेशन बन गया x ऑफ z इज इक्वल टू 1, जो यहाँ पे माइनस था ना वो माइनस मैंने बाहर निकाल दिया है, हाँ माइनस n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी a रेस टू माइनस n z रेस टू n। ठीक है, अब ये कैसे किया मैंने, देखो यहाँ पे 1 माइनस ये मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में ले लिया, n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी a रेस टू माइनस n z रेस टू n, तो यहां पे मैं n इज इक्वल टू 0 पुट करूंगा, n इज इक्वल टू 0 पुट करूंगा, तो वैल्यू क्या बन जाएगा, ये 1 एज इट इज आ जाएगा, माइनस एज इट आएगा, ब्रैकेट में क्या होगा, n इज इक्वल टू 0 मैंने यहां पे पुट किया, तो a रेस टू क्या बन जाएगा, ये 0, z रेस टू 0, तो इसका वैल्यू क्या होगा, a रेस टू 0 इंटू z रेस टू 0, इसका वैल्यू क्या बन जाएगा, 1, तो 1 मैंने बाहर ले लिया, प्लस प्लस, अब 0 मैंने यहां से निकल दिया है, तो इसका लिमिट कहां से स्टार्ट होगा, 1 टू इंफिनिटी, 1 टू इंफिनिटी, तो n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, और ये टर्म मैंने एज इट इज ले लिया यहाँ पे, बराबर है। अब मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट निकाल दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 माइनस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी a रेस टू माइनस n z रेस टू n, तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, और आपका आंसर क्या होगा, ये जो माइनस 1 टू इंफिनिटी a रेस टू माइनस n z रेस टू n, तो ये सेम हो जाएगा ना, बराबर है ना, यही है ना आपका आंसर, यही है ना आपका आंसर, तो कुछ फर्क पड़ा? नो सर। बाकी बच्चों को समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? यस सर। खाली एडजस्टमेंट सर? किया है, हाँ बोला। वो 1 कैसे है यहाँ पे, x2 के 1 माइनस x2 नहीं है, ये x ऑफ z है, मेरा हैंड राइटिंग वैसा है, ये x ऑफ z है, लास्ट। हाँ x ऑफ z है, हाँ 1 एडजस्ट किया मैंने, ये क्यों एडजस्ट किया उसका रीजन है ना, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मैं 1 एज इट इज ले लूंगा, क्योंकि इसका जो आंसर है ना, ये जो आंसर है ना, ये इसका आंसर इतना ही है, ये इतना ही है, कैसे, ये देखो यहाँ पे इसको मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में ले लिया, हाँ अब खाली मैं क्या करूंगा, n इज इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा, खाली यहाँ पे क्या कर दूंगा, n इज इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा, तो 0 यहां से निकल जाएगा, तो लिमिट कितना बचेगा, यहां से 1 टू इंफिनिटी बचेगा ना, बराबर है ना। कौन पूछ रहा था आंसर अभी, सॉरी क्वेश्चन कौन पूछ रहा था, हेलो, क्वेश्चन कौन पूछ रहा था, कुणाल गुजर। कुणाल, अरे सांगता येत नाही का मग, कुणालाच बोलताय ना, यस सर, सुयश बोलतोय। कुणाल लाज वाटते काय, यस सर, लाईट हा. गेली. बर बर ठीक है, बघ आता n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, यहाँ पे मैं खाली n इज इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा, तो लिमिट क्या बचेगा, 1 टू इंफिनिटी बचेगा ना,
बराबर है। तो n इज इक्वल टू 0 मैंने यहाँ पे पुट किया तो a रेस टू 0 और z रेस टू 0 बन जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या आएगा? और n इज इक्वल टू 0, ये पूरा समेशन का वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा। ये 1 मैंने बाहर निकाल लिया और रिमेनिंग क्या है? n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी ऐसा ही रहेगा और ये जो पार्ट है वैसे ही रहेगा, बराबर है। तो 1 माइनस यहाँ पे डाल दिया तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा और अल्टीमेटली आपका क्या बचेगा? इतना ही बचेगा ना, माइनस n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी a रेस टू माइनस n z रेस टू n। तो n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, यही आपका है ना ये इक्वेशन। खाली एडजस्ट किया मैंने 1 यहां पे, बराबर है। आया समझ में? अभी आया समझ में? ये किस लिए एडजस्ट किया है मैंने? मुझे यहां पे चाहिए n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी। क्यों चाहिए? मुझे स्टैंडर्ड इक्वेशन यूज करना है। कौन सा? ए वाला इक्वेशन यूज करना है, ठीक है। तो इसमें ए इक्वेशन यूज नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई आई वांट द लिमिट फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। तो 0 टू इंफिनिटी करने के लिए मैंने ये सब कुछ किया है, 1 ऐड किया है और ग्रीन कलर में आपको उसका क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नाउ ए इक्वेशन यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, ए इक्वेशन x ऑफ z इज इक्वल टू 1 माइनस n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी। यहाँ पे मैंने अभी n को बाहर निकाला है तो यह क्या बचेगा? a रेस टू माइनस 1 z रेस टू n। नाउ फॉर द सेकंड टर्म वी कैन अप्लाई द स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? अल्फा रेस टू n इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा। कंडीशन इज दैट अल्फा शुड बी लेस देन 1। तो ये कंडीशन मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दी और मुझे यहाँ पे मिल गया x ऑफ z इज इक्वल टू 1 माइनस, ये देखो 1 एज इट इज ले लिया मैंने, माइनस यहाँ पे अल्फा क्या है आपका? a इनवर्स z इज द अल्फा। सो दैट आई राइट हियर 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस a इनवर्स z। कंडीशन क्या है? मॉड ऑफ अल्फा इज लेस देन 1। अल्फा क्या है? a इनवर्स ऑफ z इज लेस देन 1। आप खाली एडजस्टमेंट कीजिए, यहाँ पे मैंने डिनोमिनेटर इक्वल कर दिया है, 1 माइनस ए इनवर्स जेड, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस ए इनवर्स जेड माइनस 1। यहाँ पे मैंने क्या किया है? जेड अपॉन ए को वहां पे शिफ्ट कर दिया और कंडीशन बन गई इन टर्म्स ऑफ जेड इज लेस देन ए। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट किया तो क्या होगा? 1 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रेस टू 1 टर्म मुझे निकाल देना है। तो उसी के हिसाब से मैंने एडजस्टमेंट किया है। तो आपका फाइनल आंसर आपको मिल गया यहाँ पे जेड अपॉन जेड माइनस ए, जेड अपॉन जेड माइनस ए। अब जो पहला प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया था उसका भी आंसर सेम ही आया था। यहाँ पे देखो x ऑफ z इज इक्वल टू जेड अपॉन जेड माइनस ए, बट कंडीशन और आरओसी उसका क्या था? z इज ग्रेटर देन a। यहां पे आंसर इज सेम z अपॉन जेड माइनस ए, बट यहां पे आरओसी है आपका z इज लेस देन a, बराबर है। तो a है आपका रेडियस, उसका सर्कल बनाओ, और आरओसी क्या है? आरओसी है अंदर, z इज लेस देन a, मतलब इंटीरियर पार्ट ऑफ सर्कल हैविंग रेडियस a इज द आरओसी, ये डिफरेंस है, ठीक है। जेड ट्रांसफॉर्म क्या है समझ में आया? हाउ टू सॉल्व द बेसिक प्रॉब्लम ये समझ में आ गया। आरओसी क्या है समझ में आ गया। स्टेबल सिस्टम अनस्टेबल सिस्टम कैसे फाइंड आउट करते हैं ये समझ में आ गया। बोलो इसमें कुछ दिक्कत है या नहीं? हेलो सर, हेलो। हाँ बोलो। सर आपने जो कंडीशन बताई थी लास्ट टाइम उसमें था कि मतलब z इज लेस देन a, तो वो कंडीशन जो थी वो स्टेबल होगी, मतलब आपने जो पीछे की कंडीशन से बताया था, और आपने बोला था नहीं अगर z इज ग्रेटर, हाँ यस सर। नहीं, इसमें क्या है, ये के हिसाब से स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी नहीं निकलती, ये फिक्स वैल्यू नहीं है। स्टेबिलिटी कब निकलेगी? यूनिट सर्कल के हिसाब से निकलेगी। स्टेबिलिटी कब निकलेगी? यहाँ पे हमें ए को कुछ तभी वैल्यू देना पड़ेगा, तब वो हम कह सकते कि दिस वन इज द स्टेबल, दिस वन इज द स्टेबल। अब यहाँ पे यहाँ पे हम एक कंडीशन यूज करते हैं,
ये जो है ए है ए, हाँ, तो ए के बाहर एक यूनिट सर्कल है, ए के बाहर एक यूनिट सर्कल है, ए के बाहर एक यूनिट सर्कल है। तो मुझे बताओ ये सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है? अनस्टेबल है सर। क्या है? अनस्टेबल अनस्टेबल। होगा सर, हाँ, कैसे? रीजन बताओ मुझे। क्योंकि सर वो यूनिट सर्कल को इंक्लूड नहीं कर रहा है ना। नहीं करेगा इंक्लूड। यस सर। बाकी जन सर लोग यही समझते डाउट का? था मेरे को। हाँ वही है ना, ये का अब बाद में जो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना उसका फिक्स वैल्यू ले लेंगे, ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड है यस ये। सर। ये जो यस प्रॉब्लम है वो स्टैंडर्ड है, इसलिए हाँ ए का कुछ तो यही भी डाउट वैल्यू था सर, आएगा वो ए के उसके हिसाब से, हाँ बराबर है। यस ठीक सर। है। हाँ, अब इसके अंदर मैंने यूनिट सर्कल ले लिया, ये जो तो ए है स्टेबल ना, होगा सर। तो वो स्टेबल बन जाएगा। आया समझ में अभी? यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इतना पार्ट अब हम वी विल फिनिश हियर।